Hello everyone. Today we'll discuss about the phase semantic analysis. So basically, this phase of the compiler is actually a third phase which comes after the syntax analysis, where we have already verified the syntax of the expression. So in the semantic analysis, basically we use to check the meaning of the expression or sentence, whether it is correct or not. So there are certain types of semantic actions which are performed by the semantic analyzer. You can see that first type of semantic action can be scope resolution. Now, what is the meaning of that? In a single scope, you cannot define two variables with the same name. Like I have defined integer a and integer a in the same function. So this cannot be possible because the name of the variable is the same, right? So this is the semantic action. This is the semantic error actually, which is related with the scope of the block. The second type of semantic actions, semantic error that we generally perform is called as type checking. Now, for example, you have declared a variable integer a and you're assigning the variable value as a string. So this type of semantic action, this type of error is wrong. This type of error is semantic error. Now, the third type of semantic action is array bound editing. Array bound editing. In this type of semantic error, you have declared the array of certain elements, but you are declaring the value, or you are trying to store the value in the particular index which is not available in the array. Like integer a5, I have declared the integer array and I'm trying to store the value into the 10th element, which is actually not available in the declared array. So this type of semantic errors will be occurred due to the semantic analysis phase. So basically, in the case of semantic analysis, what we do, we create a syntax directed translation definition, right? So what is SDT? It is a mechanism to perform check for meaningful parse tree. आप parse tree जो आपने syntax analysis में बनाया हुआ है, उसका meaning जो है वो यहाँ पर आप check करोगे. So basically SDT जो होता है इट इज इक्वल टू ग्रामर प्लस सीमांटिक रूल्स. ग्रामर आपके पास ऑलरेडी है, अब आप उसके साथ क्या अटैच करोगे? यू विल अटैच दी सीमांटिक रूल्स एंड आफ्टर दैट you will again design the parse tree, or you can add on semantic rules into the same parse tree, and then you will verify whether your parse tree is giving the result in the form of same semantic rules or not. If it is not giving, which means semantically your parse tree is wrong, right? Now let's take one example. Suppose my grammar is e plus e plus t. Sorry, e is equal to e plus t. यहाँ पर ये जो प्लस है इसको इक्वल्स टू मान लेते हैं. सो e is equal to e plus t. तो इसके साथ रूल क्या अटैच करा है? e डॉट वैल्यू. e डॉट वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जो नॉन टर्मिनल है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू e डॉट वैल्यू. हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखा है? e is equal to e plus t, राइट? तो e डॉट वैल्यू प्लस t डॉट वैल्यू, इसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, right? So this rule I have attached with this particular production. So in this way we design the SDT. So whatever grammar is given in the syntax analysis phase, we attach the semantic rule with every production, and according to that production we verify the parse tree whether the resultant value is the semantically verified value or not, right? So parse tree आपके पास है, एट्रीब्यूट को आपने मीनिंग दिया, विच मीन्स आपने उसमें रूल अटैच करे, और फाइनली आप वेरीफाई करके क्या देख रहे हो कि इट इज सिमेंटिकली अप्रूव्ड पार्स ट्री और नॉट. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. आपने ग्रामर लिखी हुई है i टेंड्स टू id, d टेंड्स टू 0 to 9 विच इज अ डिजिट, एंड i टेंड्स टू d. तो पहले प्रोडक्शन में आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं i और d. अब आपने प्रोडक्शन रूल क्या अटैच करा है? The left hand side value is equal to I dot value into t plus d dot value. This is the rule attached with the first production and the rule with attached with the third production. इस वाले के साथ कोई रूल अटैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लियरली बोल रहे हो the value of d will be between 0 to 9. It can be from 0 to 9. तो यहाँ कोई रूल अटैच करने की जरूरत नहीं है. फिर थर्ड प्रोडक्शन के साथ आपने एक रूल अटैच करा I dot value equals to d dot value.
नाउ फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि जनरेट 45 यूजिंग दिस ग्रामर. सो हाउ कैन यू जनरेट 45 यूजिंग दिस ग्रामर? ऑब्वियसली आपको जो i डॉट वैल्यू है, i की जो वैल्यू है वो आपको 4 लेनी पड़ेगी. रूल के अकॉर्डिंग इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40. और प्लस आपको अब कितना चाहिए, आपको 45 जनरेट करना है, तो प्लस आपको कितना चाहिए 5 और चाहिए. तो इसका मतलब अगर आप i की वैल्यू 4 लेते हैं, d की वैल्यू 5 लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो फाइनल i आएगा दैट विल बी 45. नाउ सी द ट्री. i फर्स्ट प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, i एंड d इसमें डिवाइड हो गया, और जो i है इट टेंड्स टू d अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, तो i टेंड्स टू d. और जो d है, द वैल्यू ऑफ d कैन बी 0 to 9, तो मैंने d की वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट कर दी 4. d डॉट वैल्यू अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, d डॉट वैल्यू है 4, कहां असाइन हो गई i डॉट वैल्यू में, तो i डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 4. अब d डॉट वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाला है, इसकी वैल्यू आपने क्या ली 5, तो ये डायरेक्टली असाइन हो गई, यहाँ पर कोई रूल हमने नहीं लिखा हुआ है. नाउ द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी i डॉट वैल इंटू 10 प्लस 5. सो i डॉट वैल 4 into 10 plus 5. I dot val finally क्या आया 45. So in this way you can generate 45 for this grammar. So you can check this particular grammar for other values also. Now see the second example. Suppose this is the grammar given to us and these are the semantic rules we have made to evaluate a particular expression. अब जो expression ये जो grammar है, basically this grammar can handle expressions with arithmetic expressions which can have plus and multiplication, right? तो हमने पहला जो प्रोडक्शन है उसके साथ रूल क्या अटैच करा, e डॉट वैल इज इक्वल टू e डॉट वैल प्लस t डॉट वैल. दूसरे वाले में आपने अटैच क्या करा, e डॉट वैल इज इक्वल टू t डॉट वैल. तीसरे में आपने क्या अटैच करा, t डॉट वैल इज इक्वल टू t डॉट वैल इंटू f डॉट वैल. t डॉट f, t टेंड्स टू f में क्या अटैच करा आपने, t डॉट वैल इज इक्वल टू f डॉट वैल. एंड t टेंड्स टू num, इसमें क्या अटैच करा आपने, f डॉट वैल इज इक्वल टू num डॉट l वैल्यू. l वैल्यू का मतलब लेक्सिकल वैल्यू, जो आपने आइडेंटिफायर की वैल्यू असाइन करी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज लेक्सिकल वैल्यू. तो वो जो लेक्सिकल वैल्यू है वो कहां पर असाइन हो गई, आइडेंटिफायर में, और आइडेंटिफायर की वैल्यू कहां असाइन हो गई, f डॉट वैल में. दिस इज f डॉट, f टेंड्स टू num है, दिस इज f टेंड्स टू num, इट इज नॉट t, दिस इज f टेंड्स टू num, राइट. लास्ट जो प्रोडक्शन है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं. सपोज हमें ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है 2 + 4 × 3, रिजल्ट कितना आना चाहिए 14. क्यों आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप किसे इवेलुएट करोगे 4 × 3. 4 × 3 जब आप इवेलुएट करेंगे इट विल इक्वल्स टू 12 + 2 = 14. नाउ अब इसको एसडीटी के थ्रू जनरेट करके देखते हैं. तो सबसे पहले आपने पार्स ट्री बना लिया. पार्स ट्री आपका क्या बना, e + t, और फिर e को आपने num से सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ दिस t विल बी एलैबोरेटेड इनटू t into f, और फिर इस t को आपने num से सब्स्टिट्यूट करा और इस f को आपने num से सब्स्टिट्यूट करा है. नाउ सी सीमेंटिकली वेरीफाइड ट्री देखते हैं. तो जब आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन, जो फर्स्ट आपने प्रोडक्शन यूज करा था e वाला, उसके लिए आपका जो सब्स्टिट्यूशन रूल था वो क्या था, e डॉट वैल प्लस t डॉट वैल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला जो e डॉट वैल था, दिस टेंड्स टू t, t टेंड्स टू f, f टेंड्स टू num. num की वैल्यू हमने क्या रखी है 2, इट इज असाइन टू f डॉट वैल, f डॉट वैल विल बी असाइन टू t डॉट वैल, एंड t डॉट वैल विल बी असाइन टू e डॉट वैल. सो फाइनली ये जो e डॉट वैल है इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई. अब राइट हैंड साइड पर आइए. t डॉट वैल इज फर्दर एक्सटेंडेड इनटू t डॉट वैल इनटू f डॉट वैल. सो इस t डॉट वैल को देखते हैं, ये वाला जो t डॉट वैल है. So this t dot val tends to f dot val and f dot val tends to num, and the value of num is 4, which means the 4 is assigned to f dot val and this f dot val is assigned to t dot val. कैसे, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग t dot val is equal to f dot val, तो ये t dot val की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई. सिमिलरली f dot val की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, क्योंकि आपने लेक्सिकल वैल्यू num की जो वैल्यू है वो इसमें आप असाइन कर रहे हो. तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है 4 × 3, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, t डॉट वैल इंटू f डॉट वैल विच इज 12 एंड इट इज असाइन टू t डॉट वैल. अब t डॉट वैल की वैल्यू आ गई है 12 और e डॉट वैल की वैल्यू क्या है 2.
हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, 2 + 12 which is equal to 14 and it is assigned to E dot val and this is the final value of your production, right? So in this way we used to verify whether your past tree is semantically correct or not, and for that we need to design SDT. SDT is a combination of grammar and semantic rules. So we design the past tree using a grammar, then we add the semantic rules into that past tree, and then we finally verify whether that particular grammar is generating the result according to the semantic rules or not. Now let's see one more example. What are we going to do in this example? We are converting the infix expression into the postfix expression. जैसे आप स्टैक में करते हो, तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, ये हमारा infix expression है 3 + 2 × 4. तो जब आप इसे postfix में कन्वर्ट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन बन के क्या आना चाहिए, आपका जो एक्सप्रेशन है वो बन के कुछ ऐसे आना चाहिए. जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे, 2 × 4 पहले मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, जो रिजल्ट होगा वो 3 में ऐड हो जाएगा, तो प्लस का साइन बाद में आना चाहिए. मतलब आपका जो पोस्टफिक्स है वो क्या आना चाहिए, 3 to 4 मल्टीप्लाई एंड प्लस. अब एसडीटी देखिए क्या बनाया है इस वाले ग्रामर के लिए. सो द एसडीटी फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, E is equal to E tends to E plus T, क्या बनाया है, printf प्लस. प्लस का एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन के बाद क्या आ जाना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स के बाद प्लस आ जाना चाहिए. उसके बाद E tends to T, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए. देन प्रोडक्शन एज E tends to T into F, फिर से एक ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर प्रिंट हो जाना चाहिए. फिर T tends to F, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नल. एंड F tends to num, इसका मतलब ऑपरेंड आया है आपके पास, ऑपरेंड प्रिंट हो जाना चाहिए. So we are taking this example 3 + 2 × 4. तो सबसे पहले पास्ट ट्री बना लेते हैं. E tends to E plus T, ये बना लिया आपने. अब इसके बाद ये वाला जो T है इसको एलैबोरेट करा, T tends to T into F, आपने ये बना लिया. अब ये वाला जो T है इसको आपने सब्स्टिट्यूट करा 3 से, ये वाला जो T है इसको सब्स्टिट्यूट करा आपने 2 से, और ये वाला जो F है इसको सब्स्टिट्यूट करा 4 से. E को सब्स्टिट्यूट करा है आपने 3 से, T को सब्स्टिट्यूट करा है आपने 2 से, और F को सब्स्टिट्यूट करा है आपने 4 से. अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं, जहां जहां पर आपने रूल लिखे हैं विच इज नॉट नल, लाइक printf प्लस, printf स्टार और printf num डॉट वैल्यू, इनको भी हमने एक ब्रांच मान लिया, एक प्रोडक्शन मान लिया है. तो हमने असाइन क्या करा है, A, B, C, D एंड E. तो जब हम डिजाइन करेंगे E is equal to E plus T, तो इसके साथ हम एक ब्रांच और बनाएंगे A. देखिए E is equal to E plus T and A. अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, E is equal to T, E is equal to T और साथ में क्या बनेगा B, T is equal to F और साथ में क्या बनेगा D, F is equal to num और साथ में क्या बनेगा E. अब इधर आ जाइए, आपने एक्सपेंड करा है T को, T is equal to T into F, साथ में क्या बनाया मैंने C, T tends to F with D, F tends to num with E, F tends to num with E. Now left to right स्कैन करते हैं. चलिए स्कैन करना शुरू करते हैं. तो स्कैन करना शुरू करा हमने, कहां पर आ गए, नम पर आ गए, राइट. 3 को आपने प्रिंट कर दिया बिकॉज ये F है, सॉरी ये E है, तो E क्या बोल रहा है आपसे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ नम, तो हमने 3 प्रिंट कर दिया. अब प्लस ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस आए, यहां पर आ गए D एंड देन हम कहां पर आए, नम. नम के साथ क्या अटैच है, E, विच मीन्स आपने 2 को अटैच कर दिया, यहां पर आपने 2 को प्रिंट कर दिया यहां पर. अब आप स्टार पर गए, स्टार के बाद आप F पर गए एंड अगेन आपके पास यहाँ क्या था, num 4, तो आपने यहाँ पर 4 को प्रिंट कर दिया यूजिंग दिस E, राइट. नाउ दिस C इज कंप्लीटेड, दिस C इज कंप्लीटेड, ठीक है. तो अब जब C कंप्लीट हुआ तो C पर देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, C पर आपने लिखा हुआ है printf स्टार. अब अभी तक क्या क्या हो चुका है, 3 प्रिंट हो चुका है, 2 प्रिंट हो चुका है, 4 प्रिंट हो चुका है, और अब आपने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार. अब आप आगे बढ़े, क्या आया, A पर आपने क्या लिखा हुआ है, printf प्लस. इसका मतलब स्टार के बाद क्या प्रिंट हुआ,
प्लस, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या प्रिंट होना चाहिए? 3, 2, 4 स्टार प्लस, ये प्रिंट होना चाहिए. नाउ लेट्स वेरीफाई. क्या प्रिंट हुआ? 3, 2, 4 स्टार प्लस. यहां पर मैंने रूल्स भी लिखे हुए हैं. आपने क्या क्या जो सीमांटिक रूल्स हैं वो आपने क्रॉस करें और किस तरीके से ये एक्सप्रेशन आया. नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स गिवन, लाइक ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका देखिएगा, ये पोस्ट फिक्स आना चाहिए, और जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको वेरीफाई करिए, इसका आउटपुट ये आना चाहिए. राइट? सो वील कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट टर्न. So right now I'm stopping the lecture here only. If you have any confusion, you can post me the comments or you can call me.